শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় আছি। তৃতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে দীপাবলি শুভ দিনে আমরা 48 নম্বর শ্লোক থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী चैतन्य चरितामृत आदि 3.48 ऑनवर्ड्स। यस, कोई श्लोक दोहराइए एक जन। दुई लीला चैतन्यर आदि आरो शेष, দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ, दुई लीलाय चारी चारी नामो विशेष। দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ। देखिए, चैतन्य चरितामृत 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, आदि मध्य अंत। लेकिन हम लोग कल चर्चा किया था कि पहला 24 साल उसको अगर आदि ले और अगला 24 साल, महाप्रभु टोटल 48 ईयर्स थे ना, तो अगला 24 को शेष लीला, आदि लीला, शेष लीला, ये एक दूसरा काइंड ऑफ डिवीजन है। ओके, श्री चैतन्य महाप्रभु लीला दुईटी भागे विभक्त, आदि लीला और शेष लीला। এই দুইটি লীলার প্রত্যেকটিতে তার 4টি করে বিশেষ নাম আছে। 49 নম্বর শ্লোক। সর্ব সুবর্ণ বর্ণ হেমাঙ্গ, সুবর্ণ বর্ণ হেমঙ্গ, বরাঙ্গশ্চ নন্দনাঙ্গদি, বরাঙ্গ চন্দন অঙ্গদি, সন্ন্যাস কৃচ্ছম শান্ত, সন্ন্যাস কৃত সমাশান্ত, ঠিক করে, কৃচ্ছম, কৃচ্ছম শান্ত, নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণ, निष्ठा शांति परायणा। प्रभु जी, ऊपर वाला लाइन में जो इन दोनों लीलाओं में उनके 4 नाम है, ये थोड़ा तो अभी आएगा। तो তার আদি লীলায় তিনি স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল বর্ণের সুন্দর দেহ ধারণ করে গৃহস্থ রূপে লীলা বিলাস করেন। ঠিক আছে, समझ में आया? आदि लीला में স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল বর্ণ সুন্দর দেহ ধারণ করে গৃহস্থ রূপে লীলা বিলাস করেন আদি লীলায়, মানে পয়লা 24 সাল। और তার সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং তার চন্দন চর্চিত শ্রী অঙ্গ তপ্ত কাঞ্চনের মতো দ্যুতি সম্পূর্ণ, এফালজেন্ট। তার পরবর্তী লীলায়, মানে শেষ লীলায়, মানে আগলা 24 সাল, তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন এবং তিনি সমগুণ সম্পন্ন ও শান্ত। তিনি শান্তি ও ভক্তির পরম আশ্রয়, কেননা তিনি নির্বিশেষবাদী অভক্তদের নিবৃত্ত করেন। তাৎপর্য, এই শ্লোকটি মহাভারত দান ধর্ম বিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্র থেকে উদ্ধৃত। শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ বিষ্ণু সহস্র নামের নামার্থ সুধাভিদ নামক ভাষ্যে এই শ্লোকটির উপর মন্তব্য করে বলেছেন যে উপনিষদের প্রমাণ অনুসারে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে সুবর্ণ বর্ণ কথাটির অর্থ হচ্ছে সোনার মতো অঙ্গকান্তি। সুবর্ণ বর্ণ অঙ্গ, समझ में आ रहा है? গোল্ডেন কমপ্লেক্সন বডি। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে সুবর্ণ বর্ণ কথাটির অর্থ হচ্ছে সোনার মতো অঙ্গকান্তি। এই প্রসঙ্গে তিনি যদা পশ্যতে রুক্ম বর্ণং কর্তামিশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম, এই বৈদিক নির্দেশটিরও উল্লেখ করেছেন। রুক্ম বর্ণ কর্তার মিশম অর্থে তপ্ত কাঞ্চনের মতো অঙ্গকান্তি বিশিষ্ট পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝানো হচ্ছে। ওকে, রুক্ম বর্ণং কর্তার मिशम माने मोल्टेन गोल्ड कॉम्प्लेक्शन। महाप्रभु का जो बॉडी है एकदम राधा रानी द्युति। राधा रानी द्युति क्या है? तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, तप्त कांचन मोल्टेन गोल्ड। तो महाप्रभु का भी एकदम एग्जैक्टली राधा रानी जैसा मोल्टेन गोल्ड कॉम्प्लेक्शन। ईयरफोन चाहिए तो ले जा। पुरुषम शब्दটির অর্থ পরম পুরুষ এবং ব্রহ্মযোনি অর্থে
বোঝানো হচ্ছে যে তিনি হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম। এই শ্লোকের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে সোনার মতো অঙ্গকান্তি বিশিষ্ট বলে বর্ণনা করার আরো একটি কারণ হচ্ছে যে তিনি স্বর্ণের মতো আকর্ষণীয়। दिस इज अनदर रीजन। गोल्ड जैसे बहुत आकर्षण करता है ना सबको, गोल्ड। বরাঙ্গ শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে শ্রীল বলদেব विद्याभूषण বলছেন अपूर्व सुंदर। বরাঙ্গ মানে अपूर्व सुंदर। ठीक है, इस श्लोक का एक वर्ड मीनिंग इस पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं। अगला पैरा, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার বাণী প্রচার করার জন্য গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন। क्यों क्यों कौन बता पाएगा क्यों? हाँ बोलिए माधव स्वरूप प्रभु। तो संन्यास आश्रम में रह के तो प्रचार नहीं किया जा सकेगा, इसीलिए महाप्रभु संन्यास। राम यस सत्यभामा माता जी, क्यों? क्योंकि उनको बातों को कोई सीरियस नहीं लेता था, इसीलिए उन्हें संन्यास आश्रम ग्रहण किया। हाँ करेक्ट, सन्यासी सैफरन क्लॉथ वो ज्यादा लोग सीरियसली लेगा। गृहस्थ लोग वो नहीं, ये भी तो हम लोग जैसे विषयी व्यक्ति है, ये सोच करके उनको सीरियसली नहीं लेगा। ठीक है, यस हाथ उतार दीजिए। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার বাণী প্রচার করার জন্য গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন। সম বা তার সমগুণ দুটি অর্থে প্রকাশিত হয়েছে। प्रथमत माने सम माने समगुण, दो प्रकार का समगुण है, ध्यान से सुनिए। सम माने তিনি প্রথমত তিনি পরমেশ্বর ভগবানের গুরুতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন, উসিলে সম। এবং দ্বিতীয়ত তিনি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে এবং প্রেম দান করে সকলের যথার্থ শান্তি ও আনন্দ বিধান করেছেন, সকলের, सबको दिया। उसीलिए दो प्रकार का सम है। समझ में आया अच्युत करुणेश्वर प्रभु? यस इंद्रावती माता जी समझ में आया? दो प्रकार का सम, दो प्रकार का सम का अर्थ क्या है? पहला वाला क्या है? क्योंकि भगवान का बहुत गुह्य तत्व उन्होंने प्रकाश किया। दूसरा सम का अर्थ क्या है? उन्होंने सबको कृष्ण प्रेम दान किया, वितरण किया, उसीलिए सम। তিনি শান্ত, এই শ্লোক में भी आता ना शांत। কেন? কেননা কৃষ্ণ ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়ে তিনি उदासीन। समझ में आया? शांत क्यों है? दूसरा कुछ पूछेगा महाप्रभु उत्तर ही नहीं देगा। শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ বিশ্লেষণ করেছেন যে নিষ্ঠা শব্দটির অর্থ তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তনে সম্পূর্ণভাবে মগ্ন, সেই কথায় বোঝানো হচ্ছে নিষ্ঠা, एकदम पूरा डीपली एनग्रस्ड हरि नाम में। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তি বিরোধী সব রকম মত ও পথকে খণ্ডন করেছেন। বিশেষ করে ভগবানের সবিশেষ রূপের বিরোধী অদ্বৈতবাদীদের তিনি সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন। ओके, कहाँ उदाहरण है महाप्रभु का जीवनी में कि महाप्रभु ने भगवान सविशेष रूपेर विरोधी अद्वैतवादेर तिनी संपूर्ण बशीभूत करेছেন, सबको दमन किया। उदाहरण दीजिए महाप्रभु के जीवनी में। जो अद्वैतवादी है, मायावादी है। नवद्वीप में जो एक बार सब भजन कीर्तन करता था तो घर में आके मृदंग उर्दंग तोड़ दिया, तो फिर उन लोग तो देवी उपासक थे। अब मृदंग तोड़ दिया तो काजी तो बदमाश था वो, तो मैंने वो हाँ बोल सकते हैं क्योंकि उन लोग भी तो निरीश्वरवादी के। फिर एक बार पुरी में गए तो वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य शायद, एक बार पुरी में गए क्या हम लोग जैसे घूमने जाते नहीं, पुरी जब गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ उनका, हाँ एकदम सबसे बढ़िया उदाहरण है। हाँ वो भी करेक्ट, सार्वभौम भट्टाचार्य। और बताइए बौद्ध धर्म के प्रचारक जब लोग क्या हो गया, बौद्ध धर्म क्या हो गया? शून्यवाद को भी खंडन किया। और निर्गुणान लिम्बरी माता जी, प्रकाशानंद सरस्वती के सारे ग्रुप को दमन कर दिया। बनारस तो हेडक्वार्टर था मायावाद का, और उनका लीडर कौन था हेडक्वार्टर का? प्रकाशानंद सरस्वती।
महाप्रभु उनको और उनका शिष्य को सबको वैष्णव बनाया। यस राजीव बंग प्रभु। तो केशव कश्मीरी क्यों संगीत डिबेट? हाँ राजीव प्रभु। एक बार मतलब महाप्रभु को गुस्सा दिलाने के लिए अद्वैत आचार्य ने मायावाद का मतलब प्रचार कर रहे। वेरी नाइस। चैतन्य महाप्रभु आके गुस्से में उनको मतलब मारने लगे, मतलब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और उनका स्त्री बहुत डर गया, अरे हमारा बुरा मारा जाए, अरे बुरा मारा जाए ऐसे करके उनका सीता ठाकुरानी बोलने लगा। अद्वैत आचार्य को लगा कि अरे भाई हम इनका पिता के उम्र के हैं और ये हमको दंडवत करते रहता है, ये तो ठीक नहीं है, कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा गड़बड़ कि आके हम तो उन्होंने जानबूझ के, हाँ वेरी गुड एग्जांपल, वेरी नाइस। तो जगाई माधाई भी हो सकता है क्या? जगाई माधाई भी हो सकता है क्या? पूरा समझाइए सेंटेंस को। जैसे जगाई माधाई जैसे भगवान का जैसे कुछ भी मतलब भगवान का बारे में वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, उन्हें बहुत क्रोध आता था इस सब को लेकर के, फिर उन्होंने उद्धार किया जगाई माधाई को। हाँ ठीक है, लेकिन मायावाद कहाँ थे? आई मीन आई डोंट नो उनका क्या फिलोसफी था, वो तो देखना पड़ेगा। ओके अद्वैतवादीদের কারণ উদাহরণ নাম অদ্বৈতবাদী নাম এই অদ্বৈতবাদী মানে মায়াবাদী, যারা ভগবান के और जीव के, अद्वैत माने द्वैत नहीं, सेम, हम जीव, हम और भगवान सब एक है। তাহলে মায়াবাদী ওই শঙ্করাচার্যকেই বলা যায় অদ্বৈতবাদী। एकदम एकदम ठीक है। एवर याद रखिएगा, मैं उस दिन ये सब डिटेल में समझाया था। मायावाद और अद्वैतवाद माने क्या? अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, मैं और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर वैष्णव अद्वैतवाद है तो क्या इसका अर्थ होगा? मैं एक चीज बताया था, वैष्णव मत में अगर अद्वैतवाद, इसका क्या अर्थ है? मैं भगवान का अंश हूं। ओके, मैं भगवान का अंश हूं। हाँ, उसीलिए गुणात्मिक मैं और भगवान एक हूं। हम लोग का जो गुण है, भगवान का जो गुण है, उसमें से हम लोग निकला तो ऐसे ही होगा। प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देता है? समुद्र से आप एक मग पानी निकालिए, लैब में टेस्ट कराइए, वही होगा उनमें क्वालिटी जो समुद्र के पानी में है। करेक्ट? तो ये है वैष्णव अद्वैतवाद। और मायावाद अद्वैतवाद है अहम ब्रह्मास्मि, हम और भगवान एक है। नो, हम और भगवान एक नहीं है। भगवान अलग व्यक्ति है, हम अलग व्यक्ति है, दोनों का अलग व्यक्तित्व है। यह सिरन में गौरांग प्रभु। मुकुंद जो सातपुरिया भाव हुआ था, सात प्रहरिया भाव, मुकुंद को कृपा नहीं दिया था, बाहर में बैठा था, सबको बुलाया, उसको नहीं बुलाया था क्योंकि वो उधर उधर जाता था और मायावादी का भी चला जाता था, इसलिए। एकदम महाप्रभु बोला था। करेक्ट, गुड एग्जांपल। मुकुंद को भी महाप्रकाश लीला के समय कृपा किया, कि लास्ट में किया, एक्चुअली सबसे लास्ट में किया मुकुंद, क्योंकि वो नाना घटक जल खाए। बोले चलो महाप्रभु यहाँ भी सुनता है, वैष्णव का भी सुनता है, मायावाद का भी सुनता है, वहां का भी सुनता है, वहां का सुनता है, और इसलिए मुकुंद को बुलाया नहीं। सब बोल रहे महाप्रभु मुकुंद को बुलाइए, मुकुंद को भी कृपा कीजिए। महाप्रभु चुप करके रहेगा। मुकुंद पास जाकर बोले मुकुंद तुमको बुला रहे नहीं है। मुकुंद तो इंटेलिजेंट था, वो समझ गया क्यों नहीं बुला रहे बोला हमारे डाक में ना भी जाए। तो फिर जाकर सब बोला। एनीवेज वो लीला भी देखे। तो एनीवेज गुड एग्जाम्पल, थैंक यू। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? कहाँ से कहाँ चले गए? 50 नंबर से करेंगे। हाँ, मैं अद्वैतवाद के बारे में बता रहा था। हाँ, तो अद्वैतवाद, वैष्णव अद्वैतवाद और मायावाद अद्वैतवाद का अंतर समझना चाहिए। ओके, अगला श्लोक 50। व्यक्त करी भागवते कहे बार बार, व्यक्त करी भागवते कहे बार बार, कलिजुगे धर्म नाम संकीर्तन सार, कलियुगे धर्म नाम संकीर्तन सार। तो महाप्रभु ने बार बार क्या उन्होंने प्रचार किया? श्रीमद् भागवते बार बार, सॉरी श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवते बार बार स्पष्ट करे बला হয়েছে যে কলিযুগে সমস্ত ধর্মের সার হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের दिव्य नाम संकीर्तन। ठीक है, ये कविराज गोस्वामी बोल रहे। अभी कविराज गोस्वामी इसको प्रूव करने के लिए भागवत से एक श्लोक कोट कर रहे हैं। इति दापर उर्विश्व, इति द्वापर उर्विश तत्वंती जगदीश्वरम, सत्वंती जगत ईश्वरम, नाना तंत्र विधानेन, नाना तंत्र विधानेन, कलावपि शथा श्रीनु,
कला अपि शताश्रिनो যথাশ্রীণু, সরি। হে রাজন, সুখদেব গোস্বামী বলছেন, এইভাবেই দাপর যুগের মানুষ जगदीश्वरेर आराधना करेছিলেন। तो द्वापर में क्या था? भगवत प्राप्ति का उपाय अर्च विग्रह का सेवन, करेक्ट। तो इस तरह से भगवान जगदीश को आराधना करते थे। कलिजुगेर मानुषो परमेश्वर भगवान के शास्त्रेर निर्देश अनुसारे आराधना करें। दया करे से सम्बन्धे एखन आपनी श्रवण करुन। तो कलिजुगेर मानुषो भगवान के शास्त्रेर निर्देश अनुसारे, और वो क्या है? नाम संकीर्तन। वो श्लोक किनको याद है कि 4 युगों में किस तरह से भगवत प्राप्ति होता था? गूगल हाथ उठाइए, अभी तक तो कंठस्थ हो जाना चाहिए। कितना बार क्विज में आया? ये क्लास दिन पे दिन डल होते जा रहे हैं। बहुत डाल खाता है क्या आप लोग? इतना डल क्यों होते जा रहे हैं? अभी प्राइज में हम सबको बादाम पैकेट देंगे। यस, बोलिए। कृते ध्यायतो विष्णु द्वापरे परिचर्या नहीं, कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलो तत्हरि कीर्तनाथ। हाँ, वेरी नाइस। ये कंठस्थ हो जाना चाहिए। 4 युगों का क्या युग धर्म है? कृते यद ध्यायते विष्णु, कृते यानी सत्ययुग में भगवान विष्णु का ध्यान करना, और त्रेताय, सत्ययुग के बाद त्रेता आया था इस चतुर्युग में। त्रेताय यजते मखो, त्रेता युग में यज्ञ करना भगवत प्राप्ति का उपाय। द्वापरे परिचार्य नाम, द्वापर में अर्च विग्रह का सेवन। कलो तद हरि कीर्तनत। ओके। करभाजन मुनि कोत्रिक उक्तो, ओ सॉरी मैं गलत बोला, ये करभाजन मुनि महाराज निमि को बोला था, उसीलिए 11 स्कंद में है। नवयुगेंद्र में से कल हम लोग पढ़ा था ना, कुछ कहीं कब पढ़ा था? कल ही पढ़ा था ना। नवयुगेंद्र का क्या क्या नाम है? हरि, पिपलायन, अंतरिक्ष। तो उसमें एक पुत्र, एक नवयुगेंद्र है, उनका नाम है करभाजन मुनि। तो उन्होंने महाराज निमि को ये श्लोक बताया था। करभाजन मुनि कोत्रिक ए श्लोक, हाँ बोलो। ऋषभदेव का लड़का, ऋषभदेव का लड़का लोग ये लोग। हाँ, ऋषभदेव का लड़का, ठीक। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के उद्धृत हुए। अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, सबको ये कंठस्थ होना ही चाहिए। ये भागवत में एकदम नाम नहीं लिया, लेकिन बता ही दिया कि महाप्रभु अवतरण होने वाले हैं। सब अच्छा, सब बोलने से ठीक है, सब बोलिए अनम्यूट करके। कृष्ण वर्णं तिशा कृष्णं, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, যজ্ঞই সংকীর্তন প্রায়ের, যজন্তিঃ সুমেধস। सब म्यूट कर दीजिए प्लीज। इसका हम शब्दार्थ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक एक वर्ड पे बहुत विश्लेषण अभी आएगा। कृष्ण वर्णम, कृष ও ন শব্দাংশ দুটি বারবার উচ্চারণ করতে করতে, ओके। कृष्ण, कृष और न। आकर्षण अभी बाद में आएगा, ये हम लोग देखेंगे कि कृष माने कृषि माने एग्रीकल्चर, कृष वो आकर्षण, वो सब आएगा, वो वर्ड एक्सप्लेनेशन। फिर क्या है? कृष्ण वर्णम त्रिषा, त्रिषा माने कांति, माने कॉम्प्लेक्शन, शरीर का रंग, कलर। कृष्ण वर्णम त्रिषा अकृष्णम, त्रिषा कृष्णम, त्रिषा अकृष्णम। कृष्ण बा कालो नय। इसका अर्थ क्या हुआ? महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का कलर नहीं है। करेक्ट? महाप्रभु सावले सा था क्या? नहीं, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था। तो इसीलिए कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण है लेकिन कृष्ण का कलर नहीं है। बुझते पारलें बात साहब? समझ में आया? कृष्ण वर्णम त्रिषा, ही इज कृष्ण बट ही इज नॉट, कृष्ण का कलर नहीं है बॉडी में। ठीक है? यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। प्रभु ये त्रिषा है कि त्विषा है? त्विषा, रिफला, तोय बॉय त्रिषा कृष्ण, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम। अभी क्या है? अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा।
তো অকৃষ্ণম क्या कृष्ण বা কালো নয়, तप्त कांचनेर मतो। तो महाप्रभु का बॉडी कलर हम लोग को मालूम है, राधा रानी का बॉडी कलर जैसा है, श्रीमती राधा रानी का तप्त कांचन, तो उनका भी मोल्टेन गोल्ड, तप्त कांचन। नेक्स्ट, अभी देखिए कौन कौन के साथ आया महाप्रभु। संग, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, स्वपार्षद, उपांग, सेवक वृंद, अस्त्र, अस्त्र, पार्षदम, अंतरंग पार्षद। तो ये सबका डिफरेंस है, हाँ, सब एक जैसे लग सकता है लेकिन नहीं। संग पांगास्त्र पार्षदम, यस महामंदिर माता जी मेरे बात बोलिए। संगो पांगास्त्र पार्षदम, संगो पांग अस्त्रास्त्रदम। देखिए ये वर्ड टू वर्ड देखते देखते कभी बोल ही नहीं पाएगा श्लोक। बोलिए, संगो पांगास्त्र पार्षदम, संगो पांग शास्त्र पार्षदम। ठीक है, ठीक है, यस इंद्रावती माता जी बोलिए, संगो पांगास्त्र पार्षदम, संगो पांगास्त्र पार्षदम। हमको एक चीज सिर्फ बताइए, आप लोग को अगर कोई इस्कॉन का फुल फॉर्म बोलेगा, पूछेगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा? आंतरजातिक कृष्ण भावना अमृत संग, ऐसे बोलिएगा। ये वर्ड टू वर्ड देखकर अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन जब श्लोक बोलेगा तो इसको कॉन्जुएंटली कैसे बोलना चाहिए वो उच्चारण सीखना चाहिए। संगो पांगास्त्र पार्षदम, कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम, संगो पांगास्त्र पार्षदम, ऐसे बोल नहीं सकते क्या? बोलिए सत्यभामा माता जी एक साथ। कृष्ण वर्ण की नहीं, अस्त्र पार्षदम। तो फिर से बोलिए, मैं बोल रही हूँ, आगे पर बोलिए। हरे कृष्ण, एक बार बोलिए हाथ उठाए और एक बार पहले प्रभु एक बार बोलिए ना, मैं बोल रही। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम, संगो पांगास्त्र पार्षदम, कृष्ण वर्ण त्रिशा कृष्णम, संगो पांगो अस्त्र पार्षदम। पांगो अस्त्र, यस रोहिणी कृपा प्रदायनी माता जी। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम, संगो पांगो पार्षदम, संगो पांगास्त्र पार्षदम। तो पांगास्त्र में क्या क्या आया? संग, स अंग, माने अपना जैसा ही है। स्वपार्षद कौन होगा? नित्यानंद प्रभु आएगा, सब आएगा एक एक करके, माने अपना ही स अंग, एकदम जस्ट फर्स्ट इमीडिएट एक्सपेंशन। उपांग, सेवक वृंद, सेवक कौन कौन है? नारद मुनि। एनीवेज देखेंगे फिर क्या लिखा है अगला लाइन में। यज्ञे संकीर्तन प्रायेर, यज्ञे यज्ञेर द्वारा, संकीर्तन प्राये प्रधानत संकीर्तनेर द्वारा, যজন্তি হি সুমেধস, যজন্তি आराधना करें, ही अवश्य सुमेध बुद्धिमान मानुष। तो जो बुद्धिमान मानुष है वो महाप्रभु का अनुगामी बनकर उन्होंने जो जो शिक्षा दिया उसी को पालन करते हैं। जजंती ही सुमेधस, ठीक है, यस बोलिए। प्रभु अस्त्र क्यों लिखा हुआ है? सब आएगा अभी, सब संग पांगास्त्र। उनका अस्त्र क्या था? उनका अस्त्र था हरिनाम। महाप्रभु कभी सुदर्शन या गदा वदा कुछ नहीं लेके आया, जैसे कौन था गदा लेके आया था? वरादेव, गदा फाइटिंग किया उनके साथ, क्या नाम था? हिरण्याक्ष। महाप्रभु का यह क्या अस्त्र था? प्रभु महाप्रभु तो बिना अस्त्र शस्त्र के ही थे ना। उनका अस्त्र था हरिनाम। हरिनाम से उद्धार। क्या गाना आता है ना, हरिनाम दिए जगत माता ए अमर अक्लानिता, सुना है आप लोग ने? हमारे एकलन, ये नहीं सुने सुने, बंकिम प्रभु सुने सुना था। हमारे एकलानिता एकलानिता एकलानिता, हरिनाम दिए जगत माता ए अमर एकलानिता। हरिनाम देकर पूरा जगत को माता दिया, यही उनका अस्त्र है। अनुवाद जी, निताई तो नित्यानंद होएगा। हाँ ठीक है, महाप्रभु तो निताई, निताई और महाप्रभु में की तफात है? बोलो ना। মহাপ্রভু কিন্তু ভুলে গেছিলেন যে কলিযুগে না ধরিব অস্ত্র না মারিব প্রাণে। এটাকে যখন জগাই মাথাকে যখন জগাই নিত্যানন্দর মাথা ফাটিয়ে তখন সুদর্শন চক্র ডেকেছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু উনাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আমরা এই যুগে আমরা অস্ত্র ধরবো না। তারপরে উনি রাগ সম্বরণ করলেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। অনুবাদ, যে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ ও ন শব্দাংশ দুইটি নিরন্তর উচ্চারণ করেন, हमेशा कृष्ण 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 महाप्रभु हम। কলিযুগের বুদ্ধিমান মানুষেরা তার উপাসনার নিমিত্ত
समवेतभावे नाम संकीर्तन করে থাকেন। समवेतभावे माने कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। हम लोग जैसे अभी समवेत हुआ है, इसको बोलता है कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। बोलता है ना, आप कौन से कॉन्ग्रीगेशन से हैं? हम लोग बलदेव कॉन्ग्रीगेशन से। कॉन्ग्रीगेशन माने ये कलेक्टिव चैंटिंग, सब मिलकर बैठ के एक साथ। যদিও তাহার গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ নয়, তিনিই কৃষ্ণ। অল দ্য বডি কমপ্লেক্সন ইজ নট কৃষ্ণ, বাট হি ইজ কৃষ্ণ। হ্যাঁ, বঙ্কিমপ্রভু হাত নামিয়ে দিন। তিনি সর্বদা তার পার্ষদ, সেবক, সংকীর্তন রূপ, অস্ত্র ও ঘনিষ্ঠ সহচর পরিবৃত থাকেন। অলওয়েজ महाप्रभु अकेला नहीं, सब इन लोग के साथ भ्रमण करते थे। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতে একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের 32 নম্বর থেকে উদ্ধৃত। ক্রম সন্দর্ভ নামক শ্রীমদ্ ভাগবতের ভাষ্যে শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকটির বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে সেই কৃষ্ণ গৌরকান্তি ধারণ করে অবতীর্ণ হন। সেই গৌরাঙ্গ কৃষ্ণই হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, যাকে বুদ্ধিমান মানুষেরা এই যুগে আরাধনা করে থাকেন। সেই কথা শ্রীমদ্ ভাগবতে গর্গমুনিও বলেছেন। তিনি বলেছেন যে যদিও শিশু কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি হচ্ছে কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু তিনি অন্য 3টি যুগে শ্বেত, রক্ত ও पीत वर्ण धारण करे अवतीर्ण हन। ये आया था ना पिछले दिन श्लोक में, गर्ग मुनि का श्लोक याद होगा आप लोग को, भागवत से लिया गया था। তিনি সত্য ও ত্রেতা যুগে যথাক্রমে শ্বেত ও রক্ত বর্ণের দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তো শ্বেত যুগে হংস অবতার, আর রাজপ্রভু बता रहे थे कि रक्त वर्ण माने रक्त बराह रूपे। किंतु তিনি गौर क्या कपिल हो गए, रक्तवर्ण कपिल। हाँ, भागवत में हम देखा है उनका कपिल देव को बोला गया। तो रक्तवर्ण त्रेता युगे, कपिल मुनि त्रेता युगे এসেছিলেন, সত্যতে সত্য যুগে। তাহলে এখানে তো ত্রেতা লেখা আছে ক্রমানুসার, ক্রোনোলজিক্যালি। সত্য যুগে যেটা আছে সেটা সত্য যুগে, তাহলে শ্বেত অবতার হচ্ছে কপিল মুনি। শ্বেত বলেছে? হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে অনেক হবে। ওকে, নাস্তিক কপিল মুনি হয়েছিল, নাস্তিক কপিল মুনি তাতে এসেছিল, নাস্তিক কপিল মুনি। এখানে কথাই হচ্ছে নাকি ভগবানের অবতারের কথা হচ্ছে। তিনি সত্য हंस अवतार होगा क्या? हंस अवतार, हाँ हंस अवतार ही होगा शायद, यस, सफेद वाला। তিনি সত্য ত্রেতা যুগে যথাক্রমে মানে ক্রোনোলজিক্যালি তো বলেই আছে এখানে, শ্বেত ও রক্ত বর্ণের দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি क्या बीच में बोल दिया नास्तिक कपिल मुनि, अभी वो उसको हम लोग गिनते हैं क्या भगवान के अवतार में? कुछ भी। किंतु তিনি গৌর হরি রূপে বা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতরণ করার পূর্বে তার তপ্ত কাঞ্চনের মতো পীত বর্ণ আর কখনো প্রদর্শিত হয়নি। তো और कोई अवतार में तो ऐसा है नहीं गोल्डन कॉम्प्लेक्शन ना। শ্রীল জীব গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে কৃষ্ণ বর্ণম শব্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে বোঝানো হয়েছে। কৃষ্ণ বর্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এক। কৃষ্ণ নামটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য উভয়ের সঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করেন এবং এভাবেই নিরন্তর ভগবানের নাম এবং রূপ কীর্তন ও স্মরণ করার মাধ্যমে দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন। পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচার করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তন করেন এবং বর্ণনা করেন। আর যেহেতু তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাই যেই তার সংস্পর্শে আসে সেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তন করতে শুরু করে এবং তারপর তা অন্যদের কাছেও প্রচার করে। ये हम लोग कहाँ देखा था महाप्रभु की लीला में? ये जो भी महाप्रभु के संस्पर्श में आता है वो भी हरिनाम करने लग जाता है। और हाँ, दक्षिण भारत यात्रा है, करेक्ट, यस। इंद्राणी माता जी? साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया।
हाँ, साउथ इंडियन यात्रा में महाप्रभु की जो भी आता था उनसे कृष्ण बोलो, वो भी कृष्ण कृष्ण बोलने आता। और वो व्यक्ति जब अपने गांव में वापस जाता, वो सबको प्रचार करता और सब हरिनाम करता था। इस तरह से महाप्रभु ने पूरा दक्षिण भारत को हरिनाम प्रचार किया। कितना अच्छा फॉर्मूला है ना, মানে চুম্বক जैसा एकदम। তার সান্নিধ্যে যেই আসে তার মধ্যেই তিনি অপ্রাকৃত কৃষ্ণ ভাবনামৃতের রস সঞ্চার করেন, যার ফলে সেই কীর্তনকারী ব্যক্তি অপ্রাকৃত आनंदे मग्न হয়। ताई तो एक बार महाप्रभु को, आप लोग को मालूम है ना, एक मछुआरा पकड़ लिया था। महाप्रभु भाव विभोर होकर गंभीरा से, ये अंतरलीला में आता है, चला गया था। और हम लोग अभी कुछ दिन आगे वो जब पुरी गया था, समुद्र स्नान में, कोणार्क बगल में। और क्या हुआ था फिर महाप्रभु को एक मछुआरा, और महाप्रभु भाव विभोर में होकर पुरी के समुद्र में छलांग मारा, और एक मछुआरा माछ पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो कुछ भारी बहुत बड़ा चीज आ गया। उनको लगा कि बहुत बड़ा एक मछली आ गया, आज अच्छा होगा बिक्री। तो आया तो देखा एक व्यक्ति अचेतन हो गया और कृष्ण 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 बोल रहा है ऐसे। तो मछुआरा उनको पकड़ा, उनको जाल से छुड़ाया, और उनके स्पर्श से वो मछुआरा भी कृष्ण 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 कृष्ण, इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं रहा है। और इधर महाप्रभु के सब पार्षद लोग हैरान हो गया, यहाँ वहां वहां यहाँ कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, महाप्रभु कहाँ चले गए महाप्रभु, गंभीरा में नहीं है, यहाँ नहीं, वहां नहीं है, सब इधर उधर ढूंढ रहे। फिर कहाँ मिला, ये कोणार्क के पास जो क्या था जगह का नाम, बीच का नाम, आप लोग गए थे ना, क्या हिरण्य गौरांग प्रभु, वो बीच का नाम उठाया नहीं, उतरा नहीं था, लेकिन नाम भी पता है। वो जगबंधु प्रभु बताया था, नाम याद नहीं आ रहा है। चंद्रभागा। अभी क्या हुआ, वो अभी समुद्र से थोड़ा एक नदी बन गया, वो अभी मिल भी गया, तो चंद्रभागा नदी वो अभी बीच हो गया, माने नदी मिल गया एक्चुअली, वैसा नहीं है। मालूम है ना, नदी माने जेमन समुद्र नदी जेमन ग्रास करे तमन समुद्र नदी के ग्रास करे, तो अभी वो बीच ही हो गया। चंद्रभागा उधर महाप्रभु को मिला, बॉडी माने अलाइव बॉडी, डेड बॉडी नहीं बोलना नहीं चाहिए, बट माने अलाइव बॉडी मिला, ठीक है। तो यही लीला आता है। तो महाप्रभु के संस्पर्श में आने से ये फिशरमैन ऑल्सो कृष्ण 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 बोलने लगा। तो बहुत उदाहरण है ऐसे। ताई তিনি ব্যক্তিগতভাবে অথবা শব্দ ব্রহ্মের মাধ্যমে সকলের কাছে তার কৃষ্ণ স্বরূপ প্রকাশিত হন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করা মাত্রই কৃষ্ণ স্মৃতির উদয় হয়, সেই জন্য তাকে বিষ্ণু তত্ত্ব বলে স্বীকার করা হয়েছে। पक्षांतरे श्री चैतन्य महाप्रभु होच्छेन स्वयं श्री कृष्ण अवतारी। सांग अभी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, वो जो आ रहा है सांगो पांगास्त्र पार्षदम। यस, कौन बोलेगा? माधव स्वरूप प्रभु बोलिए, सांगो पांगास्त्र पार्षदम। अनम्यूट नहीं करने से कौन सुन पाएगा आपको? तो उनके पार्षद बोलिए हमारे बात, सांगो पांगास्त्र पार्षदम, संगो पांगम अस्त्र। वाह वाह, क्या वो इतना टफ है क्या? यस, वो श्यामाई वल्लभी माता संगो पांगास्त्र पार्षदम। हाँ, इतना सिंपल है क्या? यस, गायत्री अधिका माता जी, पांगास्त्र पार्षदम। ठीक है एकदम, संगो पांगास्त्र पार्षदम। हाँ, तो सिंपल है। ओके, सांगो पांगास्त्र पार्षदम কথাটি বোঝানো হয়েছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তার শ্রী অঙ্গ সর্বদাই চন্দনের অলঙ্কারে বিভূষিত এবং চন্দন চর্চিত। ওকে, সঙ্গ মানে অঙ্গ, পহলে খুদ তার পরম সৌন্দর্যের দ্বারা তিনি এই যুগের সমস্ত মানুষকে মুগ্ধ করেন। অন্যান্য অবতারে ভগবান কখনো কখনো অসুর সংহার করার জন্য অস্ত্র ধারণ করেন, কিন্তু এই যুগে তিনি সকলকে বশীভূত করেন তার सर्व आकर्षक श्री चैतन्य महाप्रभु रूपेर द्वारा। महाप्रभु रूप को देखकर बहुत लोग भक्त बन गए। कोई उदाहरण दे सकते महाप्रभु का लीला में? बोलिए, महाप्रभु के लीला में बताइए, इतना सुंदर महाप्रभु को रूप देखकर मेनी पीपल बिकेम डिवोटी। अभी कृष्ण लीला में तो आपको मिलेगा, मथुरा में जब भगवान गया था सब
गौरवेंद्र पुलिस या क्या हो गया था उन लोग का हालत। लेकिन महाप्रभु का इतना सुंदर वर्णन देखिए। सबसे पहले जब महाप्रभु पूरी मंदिर में गया और भाव विवर हो गए, सार्वभौम भट्टाचार्य देखा, ओ माय गुडनेस, इतना तेजस्वी सन्यासी बालक, कितना सुंदर है, मालूम है ना। और फिर ये जब भाव विवर हो गया और गिर गया, मूर्छित हो गया, तो सब पांडा लोग बोला कि इसको फेंक दे बाहर। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोला नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं, टच मत करना, मैं इनको अपना घर ले जाऊंगा। तो सार्वभौम पूरी मंदिर के जो अंदर का जो कक्ष है ना, जहाँ आई डोंट नो, आगे तो जाने देता था, अभी जाने देता है क्या एकदम अंदर, परिक्रमा लगाने देता है अंदर? नहीं, बहुत कम देता है। तो ना जाते नहीं, एक बार बंद कर दिए, हाँ। तो वहां से एक टनल था, और वो टनल कहाँ खुलता था? एकदम सार्वभौम भट्टाचार्य के घर के अंदर। वो टनल देखा आपने? आप लोग ने कोई देखा है वो टनल सार्वभौम भट्टाचार्य के घर के अंदर? हमने देखा है प्रभु जी, हमने देखा है। हाँ, तो वो सुरंग पथ से सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को उठाकर लेके गया, 2-4 को बोला ले चलिए इनको, और देखा इतना सुंदर, बोला कि महाप्रभु बोला कि इतना सुंदर सन्यासी, हमको नहीं लग रहा ये अपना सन्यास पकड़ पाएगा, कंटिन्यू कर पाएगा, प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो मैं काम करता हूँ, इनको वेदांत सुनाकर इनको माने एकदम वैष्णव सन्यासी से मायावत सन्यासी, माने एकदम प्रोमिनेंट सन्यासी बनाऊंगा, क्योंकि ये वैष्णव सन्यासी ये टिक नहीं पाएगा। ऐसे करके उन्होंने प्लान किया। फिर हम लोग देखते कौन क्या परिवर्तन हुआ बाद में। भावुक सन्यासी बोले, भावुक सन्यासी, भावुक सन्यासी, ऐसे भाव विवर होकर गिर गया। तो बोले ज्यादा इमोशनल है ये, वैष्णव लोग बहुत इमोशनल होता है। जगन्नाथ देखो, जो भगवान को दर्शन करके गिर गया था, मूर्छित हो गया था, अचेतन हो गया था। শ্রীল জীব গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে অসুর দমন করার জন্য তার অস্ত্র হচ্ছেন তার সৌন্দর্য। যেহেতু তিনি সর্ব আকর্ষক, তাই বুঝতে হবে যে সমস্ত দেবতারা তার পার্শ্বদ রূপে তার সঙ্গে রয়েছেন। তার কার্যকলাপ অসাধারণ এবং তার পার্শ্বদেরা অপূর্ব। সংকীর্তন আন্দোলন প্রচারকালে তিনি বঙ্গভূমি ও উড়িষ্যা সহ সমগ্র ভারতবর্ষের বহু পণ্ডিত ও আচার্যের আকৃষ্ট করেছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ পার্ষদ শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রী অদ্বৈত প্রভু, আচার্য প্রভু, শ্রী গদাধর পণ্ডিত প্রভু ও শ্রীবাস প্রভুর দ্বারা পরিবৃত থাকেন, মানে ऑलवेज इन लोग के साथ ही रहते थे। ये राजीव मोहन प्रभु आप हैं? हाँ प्रभु। ये चार नाम जो आया था ना श्लोक में? हाँ प्रभु। ये कुछ कंफर्म हुआ क्या? ये तो श्लोक जो 49 है, इसमें जो श्लोक में जो दिया है हो सकता है वही है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो বরাঙ্গশ্চন্দ নাঙ্গ আদি, कितना नाम हो गया? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা দুইটি ভাগে বিভক্ত, আদি লীলা শেষ লীলা। এই দুইটি লীলার প্রত্যেকটিতে তার 4টে করে বিশেষ নাম রয়েছে, মানে आदि लीला में 4 नाम और अंत लीला में 4 नाम। आदि লীলায় তিনি স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল বর্ণের সুন্দর দেহ ধারণ করে গৃহস্থ রূপে লীলা বিলাস করেন। তার সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং তার চন্দন চর্চিত শ্রীঅঙ্গ তপ্ত কাঞ্চনের মতো দ্বিতীয় সম্পন্ন। उनका क्या क्या नाम, 4 नाम या गुण के बारे में बता रहे हैं। सुवर्ण वर्ण 1 हो गया, हेमांग 2, बरांगश्चनंद नंदा नंगादि 4 हो गए। बरांग चंदन चर्चित, मतलब ये आपका ये नाम, यही 4 नाम हो गया क्या जो बोल रहे हैं? हाँ वही श्लोक में तो वही बता। ये हो गया आपका आदि लीला का 4 नाम, और सन्यास के 4 नाम में बताया गया है शांत, निष्ठा, शांति परायण। सन्यास कृच्छिम शांत निष्ठा शांति परायण, शांत निष्ठा शांति परायण। हाँ, ये 4 नाम हो गया, माने गुण ही नाम हो गया ऐसे। वही 4 ठीक है। भावापन्न भी तो एक गुण है प्रभु। भावापन्न कहाँ है श्लोक में? श्लोक में कहाँ है भावापन्न? 49 में ना है नहीं, गुण तो है उनका ही, गुण तो असंख्य है।
ओके, कहाँ थे हम लोग? প্রথম চারটে কি ছিল? प्रथम चार्टे तो श्लोक में देखिए, श्लोक देखिए, समझ में आ जाएगा। सुवर्ण वर्ण, हेम अंग, बड़ो अंग, चंदन अंगादि, 4 हो गया। मिला? क्विज में आ सकता है। और शेषे 4टे की आछे, सम, शांत, निष्ठा, शांति। वर्ड टू वर्ड देखिए, सब मिल जाएगा। ओके, कहाँ थे हम लोग? कहाँ तक हुआ था? अच्छा, ये एक पैराग्राफ बाकी है, वो कल करेंगे। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, হরি বল হরি বল হরি বল। জয় শ্রী কৃষ্ণদাস।